हेडिंग लिख लेना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. Under that, there are unpaired electrons in n-1 d orbitals. So d block elements may show variable oxidation state. D block elements may show variable oxidation state. Hence, they can combine with reactant molecules. They can combine with reactant molecules through which some energy is released. Through which some energy is released. And weakening of bond of the reactant molecules. Weakening of bond in reactant molecule takes place. Hence, activation energy decreases. So transition element can act as good catalyst. Transition elements can act as good catalyst. Okay, so now let's talk about the next property, magnetic property. We are very much aware about it already, so इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. कंसेप्ट यह है कि अगर सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, because of that unpaired electron, there is some resultant magnetic moment present, right? So atom becomes magnetic. तो external magnetic field में ऐसा atom, ऐसा element attract होता है, which is called as paramagnetic. और if all the electrons are paired, in that case, the resultant magnetic moment become equal to 0. और ऐसे substance को हम बोलते हैं diamagnetic. And such substance feels repulsion in external magnetic field. अभी d block elements में हमारे पास है n-1 d orbital. This is n-1 d orbital. 1, 2, 3, 4 and 5. ये हमारे पास 5 n-1 d orbitals है और ये हमारे पास ns orbital है. So this is ns n-1 d. Normally what happens, पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं ns में, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ns ऑर्बिटल में और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं n-1 d में. So there is suppose d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9. मतलब नॉर्मली जब तक d10 नहीं होगा तब तक इनके पास 1 or more unpaired electron present रहेंगे. ठीक है. And because of that they will be behaving as a paramagnetic substance in their atomic state and in their compound state also. Now what happens, sometimes in the compound they show very high oxidation state and configuration become 3d0. That's scandium chloride. अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s2. आई होप आपने पीरियोडिक टेबल से कॉन्फ़िगरेशंस को रिवाइज कर लिया होगा. तो 21 नंबर का एलिमेंट है स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s2. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉर्म स्कैंडियम +3,
the 3 electrons will be donated. 3 electrons donated, so इसके पास होगा no unpaired electron. अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक. So most of the cases they have unpaired electron, and that is the reason in most of the cases they behave as paramagnetic substance. But in some oxidation state, if they do not have any unpaired electron, then they will be called as diamagnetic. Now if they have unpaired electron, then magnetic momentum will be calculated by the formula square root of n into n plus 2 बोर मैग्नेटोन. मतलब अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 into 1 plus 2 बोर मैग्नेटोन. If there are 2 unpaired electrons, so formula will become 2 into 2 plus 2 बोर मैग्नेटोन. If there are 3 unpaired electrons, then formula will become 3 into 3 plus 2 बोर मैग्नेटोन. That is the formula by which we can calculate the magnetic momentum. Paramagnetism कितना है ये find कर सकते हैं. ठीक है. So quickly देखो इधर. When a substance is placed in the magnetic field, they show two types of property. One is paramagnetic, other is diamagnetic. If the molecule, atom or ion, कोई भी substance हो, molecule हो, atom हो या ion हो, if it has one or more unpaired electron, such substance is called paramagnetic. If all electrons are paired, then it is called as diamagnetic. ट्रांजिशन एलिमेंट के n-1 d ऑर्बिटल्स में इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. मैंने आपसे पहले भी कहा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोलेंगे ही तब, ट्रांजिशन एलिमेंट हम तभी बोलेंगे जब n-1 d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि स्कैंडियम सॉरी जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अनन, बायम, मतलब पूरा 12th ग्रुप डी ब्लॉक में आता है लेकिन ट्रांजिशन में नहीं आता है. So anyone having any problem, please raise your hand. Stop sending me chats rather than raise your hand. Obviously taking a lecture and explaining, I cannot read out your chats. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो raise your hand. चिट चैट मेरे से करना हो तो रात को 12 बजे बाद मैसेज करना, तब मैं फ्री रहता हूँ. 12 से 2 तक मैं व्हाट्सएप पे एकदम फ्री रहता हूँ. ठीक है. तो चिट चैट करना हो तो रात को आना 12 बजे बाद व्हाट्सएप पे, 2-2:30 बजे तक. नॉर्मली मैं क्लास का मैसेज भी 12 बजे बाद ही भेजता हूँ. ठीक है. तो आफ्टर दैट टाइम आई एम फ्री. ये इधर जूम पे चिट चैट नहीं. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम है रेज योर हैंड. ओके. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इनके पास होगा n-1 d में, क्योंकि तभी हम उसको ट्रांजिशन बोलेंगे. लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ना, दैट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड देन यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट. अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट क्विकली वी कैन आंसर इन द एग्जाम. सो द आइडिया इज, अब देखो डी में या तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 2 और 3 और 4 और 5. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन. 1 into 1 plus 2 square root of 2 into 2 plus 2 square root of 3 into 3 plus 2. Likewise, तो जो सॉल्यूशन आता है वो आता है 1 2 3 4 5. मतलब डेसिमल के पहले वही नंबर आएगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और डेसिमल के बाद 0.78899. राइट. ऑलमोस्ट ये सॉल्यूशन आता है रफली. डेसिमल में थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत चलेगा, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है तो क्लियर है कि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर मैं कहता हूं कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट 2 है 2.8 है तो इसका मतलब उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है.
सो राइट डाउन अ क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से सॉल्व करो। Which of the following compound has magnetic moment? Which of the following compound has magnetic moment nearly 5.9? Manganese 2 oxide, manganese 3 oxide, manganese 4 oxide, and potassium permanganate. Manganese 2 oxide, manganese 3 oxide, manganese 4 oxide, and potassium permanganate. अभी कितने लोगों को यही पता नहीं चला 2 ऑक्साइड 3 ऑक्साइड 4 ऑक्साइड क्या होगा? अच्छा, कितने लोगों को पता चला 2 ऑक्साइड 3 ऑक्साइड 4 ऑक्साइड क्या है? एक। ध्रुविन, आकाश, ध्वनि, मिली, हेतवी, समर्थ, ओम, मनाली, तीशा, कपिल। हाँ सोचा कपिल, 2 oxide and a 3 oxide and a 4 oxide. Speak up. Sir, Mn+2. Huh? Sorry, repeat. Repeat. Sir, Mn+2. So this 2, 3, 4 is a stock notation where we are telling the oxidation state of the metal. Manganese 2 oxide, that means the manganese in +2 oxidation state. Manganese 3 oxide, that means manganese is in the 3rd oxidation state. Manganese 4 oxide, that means manganese is in the 4th oxidation state. And the last compound is given as KMnO4. So देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। What we'll do is manganese 2 oxide, manganese 3 oxide, manganese 4 oxide, and potassium permanganate. Okay. +2 -2 cancelled. Charge crisscross, Mn2O3. Charge crisscross, MnO2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 and 1, और फिर crisscross and KMnO4. मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2. ओके, अब यहाँ पे मैग्नीज +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन बना 3d5। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम 4s and 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम 3d, सो हमें मिलेगा 3d4। ओके, और उसके बाद ये कंडीशन में यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन गए 3d से, तो बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आएगा +7। कैसे कैलकुलेट करोगे? रेडॉक्स 11th में पढ़ाया था। पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, मैग्नीज x, ऑक्सीजन 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। तो +7 का मतलब ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, ऑल 7 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, सो मैग्नीज +7 में 3d 0 हो जाएगा, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? 5.9। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.9, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.8 और 3.7 के आसपास। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे विल गिव यू द, अब ये सर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पार्ट वेरी करेगा। Which of the following is the most paramagnetic? Which of the following is the least paramagnetic? Which of the following is not paramagnetic? Which of the following has a paramagnetic behavior 3.9? Right?
तो ये तो कंपलसरी हमें करना ही है। इसमें क्या होगा, अगले जब चैप्टर में जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो एक डायमेंशन नया जुड़ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद हमें फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थोड़े वेरी करते हैं जब कंपाउंड बनता है, ठीक है। कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट एक बहुत बड़ा टूल होता है, ठीक है। पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सब कुछ चेक करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कंसेप्ट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन ये कंसेप्ट फाइंडिंग द मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बेस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, ये कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। कोविड जैसी कोई दूसरी प्रॉब्लम वापस आ जाए या नहीं आ जाए, गारंटी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट एग्जाम में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। छप गया है पेपर के अंदर, तुम भी लिख लो, बोर्ड गुजरात बोर्ड में भी छप गया, सीबीएसई में भी छप गया, क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। अभी हमने सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, इन कमिंग चैप्टर्स वी विल बी प्रैक्टिसिंग इट विद द क्वेश्चंस, राइट। चलो, तो ये हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है जो लॉजिकल क्वेश्चन है, कि हम जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन से, जिस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन होती है, मतलब मैंने कहा रफली 5.9, जब आप एक्सपेरिमेंटली चेक करते हो तो उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। आप कहोगे कैलकुलेशन एरर, राइट। इट नॉट प्रिसाइसली कैलकुलेशन एरर। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशंस हैं, इट इज स्पिनिंग ऑल्सो एज वेल एज इज रिवॉल्विंग ऑल्सो, राइट। अब ड्यू टू द स्पिन मोशन it is generating magnetic field as well as due to the circular motion around the nucleus, again it is generating magnetic field. अब ये जो theoretical calculation है, it is based on only spin motion, it is not based on orbital motion. ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। अब क्या होगा, जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर स्पिन मोशन वाला मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मोशन वाला मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थोड़ा ऐड हो जाएगा, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थोड़ा एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा, बट दैट वेरिएशन विल बी वेरी स्मॉल टू द वन प्लेस ऑफ द डेसिमल और टू द टू प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। सो इनिशियल वैल्यू जो नंबर है 5 4 3 2 1 वो चेंज नहीं होगा। तो डेसिमल के बाद है वो 0.9 की जगह 0.8 हो सकता है, राइट, 0.7 हो सकता है, या थोड़ा ज्यादा होके 5.95 हो सकता है, 5.98 हो सकता है। तो देर आर माइनर चेंजेस, हमें उन चेंजेस से नहीं डरना है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई चेंज हुआ भी है, पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जो थियोरेटिकल वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो डिफरेंट क्यों आ रही है, राइट। सो शॉर्ट में मैं इसको फटाफट लिख लो, से फटाफट आंसर लिखो या स्टेटमेंट लिख लो। theoretical and experimental magnetic moments, theoretical and experimental magnetic moments are different because theoretical magnetic moment is based on theoretical magnetic moment is based on only spinning of electron, whereas experimental magnetic moment
is based on spin as well as orbital motion. Okay, next is interstitial compound formation property. So to understand the interstitial compound formation property, one simple logic we need to understand. डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? फोर्थ पीरियड से, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड. सो दे आर क्वाइट बिग साइज एटम्स, राइट? तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है या फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, या फिर सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे आर लाइक टेबल टेनिस बॉल इन फ्रंट ऑफ फुटबॉल, राइट? अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट को फुटबॉल कंसिडर करोगे तो कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन and hydrogen, they will be somewhat table tennis ball in front of them, right? So when you arrange the big crystals, आपने solid state पूरा पढ़ा है तो आपको आइडिया है, right? Cubic void बन सकती है, tetrahedral void बन सकती है, octahedral void बन सकती है. There are different type of voids will always be there, right? So उन voids में अगर हम इन छोटे atoms को रख देते हैं तो इन छोटे atoms को रखने के बाद जो compound बनता है वो interstitial compound होता है. और ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि आपको स्पेस है आपके पास, whatever the proportion of the space you want to occupy, you may occupy. See, when I form a compound of scandium with chlorine, I don't have a choice. I have to follow the oxidation states. स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होती है, स्कैंडियम +3, और क्लोराइड के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है? तो वो स्कैंडियम क्लोराइड SCCl3 होगा. मेरे पास ऐसा कोई मतलब 1:3 के रेशो में कंबाइन करना पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी चॉइस के 1 मोल स्कैंडियम ले लिया और हाफ मोल क्लोराइड ले लिया, राइट? या 1.5 मोल क्लोराइड ले लिया या 3.5 मोल क्लोराइड ले लिया. दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू मैच द ऑक्सीडेशन नंबर. जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है उतना नेगेटिव होना चाहिए. तो जब आप आयोनिक कंपाउंड बनाते हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हो, तो आपको रेशो मेंटेन करने पड़ते हैं. मैग्नीज 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला MnO ही हो सकता है, मतलब 1 मोल मैग्नीज +2 के साथ 1 मोल ऑक्साइड आयन ही चाहिए और कुछ नहीं चलेगा. 1.5 मोल ऑक्साइड नहीं चल सकता है, ठीक है? लेकिन जब आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो तो आपके पास चॉइस है. यू कैन ऐड लेस क्वांटिटी ऑल्सो, यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी ऑल्सो, राइट? सो इनके जो रेशोज होते हैं वो फिक्स नहीं होते. रेशो फिक्स नहीं होते मतलब स्टाइक्योमेट्री फिक्स नहीं होती. तो इसलिए हम इन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, राइट? अब एक छोटा सा लॉजिक समझने का ट्राई करो. इट्स क्वाइट अ थियोरेटिकल थिंग, बट आपके पास जो मेटल्स थे प्योर स्टेट में, उसमें बहुत सारी कैविटीज थी, वॉइड्स थी, टेट्राहेड्रल वॉइड थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थी, या डिपेंडिंग ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक वॉइड भी हो सकती है. देयर वर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट. अब आपने क्या किया, उस एम्प्टी स्पेसेस में से नॉन मेटल के एटम्स को फिक्स कर दिया. तो हार्डनेस का क्या होगा, क्या लगता है आपको? हार्डनेस विल इंक्रीज और हार्डनेस विल डिक्रीज. हार्डनेस विल बिकम मोर और हार्डनेस विल बिकम लेस. सी, अभी प्रॉब्लम यह है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं आंसर क्या दूं, या आप ये सोच रहे क्या होगा. आप ये नहीं सोच रहे हो कि इफेक्ट क्या क्रिएट किया मैंने, ठीक है? मेटल्स में बॉन्डिंग कौन सी होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? which is a weak bond. It is one of the weakest chemical bond compared to ionic bond and covalent bond. Normally the metallic bond is weak. Now what I did is I kept the non-metal inside. Non-metals have good electronegativity.
तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा टाइटली होल्ड करेंगे। मोर ओवर आपने जो वॉइड्स थी, जो कैविटीज थी, उनको ऑक्यूपाई कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट द हार्डनेस विल इंक्रीज, क्योंकि इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले एटम चले गए अंदर, नॉन मेटल के एटम चले गए अंदर, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, राइट। इसमें से कुछ मेटल्स की, जैसे टंगस्टन कार्बाइड या इस तरह के कुछ मेटल्स की, तो हार्डनेस ऑलमोस्ट डायमंड तक चली जाती है, डायमंड के लेवल तक चली जाती है, इतने हार्ड हो जाते हैं मेटल्स। अदरवाइज दे आर नॉट, दे आर डेफिनेटली हार्ड मेटल्स, बट देयर हार्डनेस कैन बी फर्दर improved by making the interstitial compound। तो थियरी मत रखो इसमें, समझो, दो तीन लॉजिक समझो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड में आपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट रख दिए, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या आपने कोई केमिकल बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया, तो क्या आपको कोई रेशो फिक्स करने की जरूरत है, नहीं है। रेशो फिक्स करने की जरूरत नहीं है तो हम इसको बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, रेशो फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दैट, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, द हार्डनेस विल इंक्रीज। एंड नॉर्मली फिर भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहते ही है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। मोर ओवर रस्टिंग पे क्या इफेक्ट होगा, कैन एनीवन टेल, रस्टिंग पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज रस्टिंग? Rusting is the oxidation of metal into its compound under the environmental conditions, right? Under normal environmental condition, metal oxidizes into its compound, that's called rusting, that's called corrosion। आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दे कन्वर्ट इनटू देयर सम कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। आयरन का ऑक्साइड बनता है, कॉपर का कार्बोनेट बनता है, सिल्वर का सल्फाइड बनता है, ठीक है। तो आप देखते हो ना, जो भी सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली उनकी सरफेस टर्निश हो जाती है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बनाता है, राइट। और एयर में सल्फर का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, तो सिल्वर की रस्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। वैसे भी सिल्वर लेस रिएक्टिव मेटल है, मोर ओवर एटमोस्फियर में सल्फर भी बहुत कम है, तो द सरफेस बिकम डल आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सिल्वर में रस्टिंग नहीं होती, राइट। ऐसा नहीं कि सिल्वर की रस्टिंग, गोल्ड की रस्टिंग नहीं होती, गोल्ड का कोरोजन नहीं होता, प्लैटिनम का कोरोजन नहीं होता, लेकिन सिल्वर का कोरोजन होता है। वेल, कोरोजन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मैंने पॉइंट बोला था उससे रिलेट करो, मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है? नॉन मेटल। इफ आई एम एडिंग द नॉन मेटल, व्हाट विल हैपन? इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन। if it is holding the electron, will it allow the electrons to be donated? No, so rusting will stop। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से हार्डनेस बढ़ती है, रस्टिंग कम होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन द वॉइड्स ऑफ द d block metals is occupied by second period elements like carbon, boron, nitrogen, or maybe hydrogen from the first period। अगर बोरोन ऐड किया तो कंपाउंड को बोलते हैं बोराइड, नाइट्रोजन ऐड किया तो नाइट्राइड, कार्बन ऐड किया तो कार्बाइड, हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्राइड, राइट। चैप्टर हाइड्रोजन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना आपने, हाइड्राइड्स। तीन तरह के हाइड्राइड्स थे, सेलाइन हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, एंड दिस कोवेलेंट और द मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो ये वही हाइड्राइड्स रिपीट किए हमने, मेटालिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, दैट्स द सेम थिंग फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड, बट थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो फटाफट से छोटे से दो स्टेटमेंट लिख लो। When interstitial voids, when interstitial voids of transition metals, when interstitial voids of transition metals are occupied,
by non-metals, by smaller non-metals, by small non-metals like carbon, nitrogen or boron, carbon, nitrogen or boron, then compound formed are called interstitial compounds. Next, they are electrically neutral. They are electrically neutral. Sorry, they are electrically unaffected. मतलब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम मेंटेन रहती है. They are chemically inert. They are chemically inert. Hardness, melting point and boiling point. Hardness, melting point and boiling point increases. They are also called non-stoichiometric compound. They are also called non-stoichiometric compound. Next is the alloy formation property. देखो इधर ध्यान से. Alloy क्या होते हैं? Alloys are the solution of metal in metal. Solution of metal in metal or homogeneous mixture of two metals, two or more metals, that is called as alloy, right? और ये जो alloy formation की property है, it is very common in case of the transition elements. Now why it is so? ध्यान से सुनो, जब दो metals alloy बनाते हैं तो तीन conditions उनको follow करनी पड़ती है. The difference in the size should be less than 15%. मतलब एक मेटल का रेडियस अगर 100 पिकोमीटर है तो दूसरे मेटल का रेडियस 85 से 115 पिकोमीटर के बीच में कुछ भी चलेगा. लेकिन अगर दूसरा मेटल 70 पिकोमीटर का है या 120 पिकोमीटर का है तो वो दोनों मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना सकते. ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, तुम प्रॉब्लम अगर है तो कभी एक कार का टायर दूसरी कार में लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारी कार में तुम ट्रक का टायर तो नहीं लगा सकते ना. सो बेसिकली जब अलॉय बनेगा, अब आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको बता रहा हूं. सपोज बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, किसी मेटल ए की. ठीक है, तो इसका मतलब उसमें 8 कॉर्नर्स पे, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एटम रखा हुआ है. एग्रीड? और उस क्यूब के सेंटर में भी एक एटम रखा हुआ है. अब जब हम एलॉय बनाते हैं तो एलॉय कैसे बनाओगे? पहले आपको उस मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा मेल्टेड मेटल उसमें मिलाना पड़ेगा, फिर वो रिक्रिस्टलाइज होंगे. जब वो रिक्रिस्टलाइज होंगे तो क्या करेंगे? पहले कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर में एटम ए था एंड सेम थिंग वाज देयर इन द बी आल्सो. मतलब बी का क्रिस्टल कैसा था? कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में बी. ए का क्रिस्टल कैसा था? कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में ए.
जब दोनों को मेल्ट किया तो क्रिस्टल ब्रेक हो गया, एग्रीड। फिर जब उन्हें रिक्रिस्टलाइज किया तो वापस अरेंजमेंट बनेगा, कॉर्नर और बॉडी का सेंटर। बट दिस टाइम द ए एंड बी विल चेंज और इंटरचेंज ईच अदर एट सम प्लेसेस। मतलब out of 8 corners, maybe 1 or 2 corner B is present, rest of the corner A is present, right? Or in some places, all corners and body center are not formed by B, उसमें से कुछ जगह पे A आ गया, मतलब हम एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप फुटबॉल को रिप्लेस करने के लिए बास्केटबॉल यूज कर सकते हो, बट फुटबॉल को रिप्लेस करके आप उसकी जगह पे टेनिस बॉल तो नहीं रख सकते ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये है कि आपके जो दोनों एटम्स की साइज है उसमें डिफरेंस लेस देन 15% होना चाहिए। समझ में आ गया? तो दूसरा पॉइंट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सिमिलर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सिमिलर। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो केमिकल रिएक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इन दैट केस दे मे रिएक्ट विद ईच अदर। वी डोंट वांट टू फॉर्म कंपाउंड, we want to prepare mixture, so there should not be any chemical reaction, so we avoid the chemical reaction by keeping the similar valential configurations, right? And the last thing which I have already mentioned in the explanation, मैंने A का कौन सा अरेंजमेंट बनाया था, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और A का भी कौन सा अरेंजमेंट बनाया था, BCC। अब अगर एक होगा FCC और दूसरा होगा BCC, then how would they replace each other in the crystal structure? दोनों की crystal structure ही मैच नहीं कर रही है, right? So in that case, how would it be possible to form the crystal? क्रिस्टल तो तभी बन सकता है जब दोनों एक जैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ठीक है भैया, तू मेरे कॉर्नर पे चला जा, मैं तेरे कॉर्नर पे चला जाता हूँ, ठीक है ना? तब आप ये कर सकते हो ना कि ठीक है सर, आज ओपी रोड पे क्लास नहीं करेंगे, आज इलोरा पार्क आ जाएंगे, टॉपिक सेम चल रहा है, ठीक है आ जाओ, ठीक है। पर आप ये बोलो कि सर आज ओपी रोड पे नहीं आ पाऊंगा, मैं इलोरा पार्क में कोई मैथ्स का क्लास चल रहा है या फिजिक्स का क्लास चल रहा है, वहां चला जाऊंगा तो केमिस्ट्री हो जाएगा? भैया जब टॉपिक ही अलग अलग है, सब्जेक्ट्स ही अलग अलग है, टीचर अलग है, तो कैसे हो जाएगा? जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही सिमिलर नहीं है तो तुम एक के कॉर्नर को दूसरे के कॉर्नर से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मे नॉट बी फॉर्म्ड इन दैट केस। समझ में आया? तो तीन कंडीशंस को मिला के, अभी तीनों कंडीशंस को दिमाग में फिट बैठा लो, क्योंकि ये एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, which is called as Hume and Rothery principle. Hume and Rothery principle for the formation of alloy says the difference in the size should be less than 15%, valential configuration should be similar, and the crystal structure must be identical. Right? तीनों कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डू दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन कंडीशंस को कैसे अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? तो वन लॉजिक इज वेरी क्लियर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इनमें इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, n-1 डी में। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहां होती है, n-1 डी में। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2, तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर टाइटेनियम का क्या है, 3d2 4s2, राइट। वेनेडियम का क्या है, 3d3 4s2। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन द इनर शेल, तो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन रिमेन नियरली सेम। कभी कभी एक्सेप्शन आएगा तो 4s2 की जगह 4s1 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, द साइज, ठीक है। अभी साइज वाला जो इशू है वो, इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सॉल्व करोगे तो आपको साइज वाला मैटर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं एक बार। देखो, हम जब मूव करते हैं लिथियम टू फ्लोरीन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा। तो
sigma is 0.35 for valence shell. And sigma is 0.85 for n-1 d shell or n-1 shell. मतलब ये न्यूक्लियस है, ये 4 शेल है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड किया तो यहां पे प्रोटॉन भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्रोटॉन इंक्रीज बाय 1, लेकिन उस पूरे एक प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है तो अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा। कितना वीक हो जाएगा? 0.35। मतलब जो नया प्रोटॉन ऐड किया उस पूरे के पूरे प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक नहीं पहुंचा, उसमें से कितने परसेंट इफेक्ट बाहर पहुंचा? 0.65। उस प्रोटॉन की अट्रैक्ट करने की जितनी कैपेसिटी थी उसकी 65% कैपेसिटी बाहर तक पहुंचेगी। ठीक है, अभी दूसरा कंडीशन देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड किया, द न्यू इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन n-1, तो ये तो ज्यादा पावर से पुश करेगा ना, क्योंकि ये अंदर है, ये न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में है। तो ये जो करता है, ये एक प्रोटॉन में से 85% इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो बाहर कितना इफेक्ट पहुंचता है? ओनली 15%। समझ में आया? अगर आपके कोई पास में खड़ा है और आपको पुश कर रहा है साइड में इधर उधर, ठीक है, जस्ट बिसाइड यू समबडी इज स्टैंडिंग एंड यू पुश हिम, तो उसको थोड़ा कम फोर्स लगेगा, राइट? समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू पुश, ऑब्वियसली उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, कैसे स्टूडेंट हो, तुम्हें मारा मारी पैसा बस यही सब समझ में आता है? ठीक है, या तुम ये भी कह सकते हो कि कैसे सर हो आप, या तो मारा मारी से पढ़ाते हो या फिर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में आता है तो वो नए प्रोटॉन के 85% इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब प्रोटॉन जिस पावर से अट्रैक्ट कर सकता था उसका 15% पार्ट ही बाहर तक पहुंचेगा, मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। समझ में आ गया ना? आया समझ में? ठीक है, अब जब हम जाते हैं एक नॉर्मल पीरियड में लेफ्ट टू राइट, जब हम जाते हैं नॉर्मल पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो Z इंक्रीजेस बाय 1 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में, तो सिग्मा इंक्रीजेस बाय 0.35। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज बाय 1 माइनस 0.35, तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। मतलब लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर 1.3 है तो बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 1.95 और बोरोन का होगा 2.60, right? Likewise you can keep on adding 0.65 0.65 0.65 to find the effective nuclear charge। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास है स्कैंडियम से लेके जिंक तक जब हम जाते हैं, ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे तो इफेक्ट एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा बाय 1, 21 22 23 लाइकवाइज, और सिग्मा विल इंक्रीज बाय 0.85। Why? Because electron is being added into n-1 shell, so effective nuclear charge will increase 1 minus 0.85 is equal to 0.15।
ठीक है। तो अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है x, तो नेक्स्ट होगा x प्लस 0.15। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है। ध्यान से सुनना, आप मैं एक सिमिलैरिटी बताऊंगा, एक डिफरेंस बताऊंगा। लिथियम में फ्लोरीन तक गए, लिथियम से कहां तक गए, फ्लोरीन तक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है 2, बट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है by 0.65 by 0.65 by 0.65 by 0.65, बट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है तो साइज कम होगा। एग्रीड? सर हिलाओ। एग्रीड? स्प्रेन आया हुआ है क्या नेक में, घूमती नहीं है क्या ऐसे वैसे, बराबर से चलाओ। हाँ, तो left to right size will decrease because effective nuclear charge is increasing. That is applicable in both the cases. I need not to say normal period or transition period. In any period when we go from left to right, the effective nuclear charge increases and the size decreases. But in transition elements, increase in effective nuclear charge is less. कितना है? 0.15, और नॉर्मल पीरियड में कितना था? 0.6। ऑब्वियसली न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है लेकिन बहुत कम बढ़ रही है, तो डिक्रीज तो होगा साइज में, but decrease in size will be in the lesser proportion, right? तो इसका मतलब जब हम क्रोमियम से कॉपर तक जाते हैं, मतलब मिडिल से लास्ट तक जाते हैं, सेकंड लास्ट तक, तो साइज में सिर्फ 2% का चेंज होता है, ओनली 2%, और हमारी लिमिट कितनी है? 15%। ह्यूमन रोटरी प्रिंसिपल में अलॉय बनाने के लिए लिमिट कितनी है? 15%, और क्रोमियम से कॉपर चेंज कितना होता है? 2%, राइट? So because of their similar size, they have the कैपेसिटी टू फॉर्म, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना आराम से। आउटर शेल सबका NS2 या NS1 है, तो आउटर शेल तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और डिक्रीज इन साइज इज ऑल्सो वेरी लेस, बिकॉज डिक्रीज इन साइज इज वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज द effective nuclear charge increase is very less. Why effective nuclear charge increase is very less? Because electron is being added in the n-1 d, right? अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा डिटेल में टॉपिक को पढ़ते हैं, राइट? अच्छा कहो या बुरा कहो, बाकी के 95% तो जो मैं बोलता हूं सुन लेते हैं, या ये कह लो जो बोलता हूं वो सुनते ही नहीं है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो बोल दिया ठीक है, सही बोला होगा, सर है, ठीक है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो है, इतने साल से पढ़ा रहे तो गलत तो क्यों बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब भी डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का थियरी कहीं से रीड करते हो, तो वहां ये लिखा होता है DNF ऑर्बिटल प्रोवाइड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने कहा ये तो बढ़िया स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहा है 0.85 का, और बुक्स में आप क्या पढ़ते हो? दे प्रोवाइड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो टेक्स्ट बुक के ऑथर में और हमारे एक्सप्लेनेशन में एक शेल का फर्क पड़ गया। एक शेल का फर्क कैसे पड़ गया? वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 4s 4p 4d 4f है, 4s 4p 4d 4f है, तो s की जो स्क्रीनिंग पावर है वो ज्यादा होगी, और सेम शेल वाले d की स्क्रीनिंग पावर कम होगी। लेकिन मैंने तो सेम शेल वाले d की बात की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट n-1 d, ठीक है? तो शाम तक व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो भेज के मत बोलना सर आपने बोला था डी का स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होता है और इसमें लिखा है डी का स्क्रीनिंग पावर कम होता है। मैंने स्पेसिफिकली डी नहीं बोला, मैंने बोला n-1 d, मतलब शेल ही चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया डिस्कशन का, ठीक है? ऑथर को भी पता नहीं क्या जल्दी है कि वो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 2-3 जगह लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पे DNF हैव द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट? दैट्स करेक्ट,
but out of context. Our context is इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 d सब शेल में. n-1 is more important rather than being a d. वो n-1 d की जगह ऐसा हो पॉसिबल नहीं है, पर अगर n-1 d की जगह n-1 s में जाता है, n-1 p में जाता, तब भी हम उसका सिग्मा 0.85 ही कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. और अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट चेंज इन साइज इज नेग्लिजिबल. यहां एक्सेप्शन ये है, डाउन द ग्रुप द चेंज इन साइज इज नेग्लिजिबल. लेफ्ट टू राइट तो नेग्लिजिबल है ही, टॉप टू बॉटम भी नेग्लिजिबल है. उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. टेक्स्ट बुक में तो एक लाइन में बोल दिया कि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ द ग्रुप रिमेन सेम, बट वी हैव टू डू इट इन द मोर डिटेल, राइट? So let's meet tomorrow morning 7 o'clock. Anyone any problem? 7 बजे सुबह 7 to 8. प्रेरणा भक्ति कुंजल सुबह सुबह 7 बजे क्या प्रॉब्लम आ गई? लोकेश ओके, टुमारो मीट एट 1 o'clock. Tomorrow at 1 o'clock we'll continue with the same concept, right? Have a nice day and try to find out. मैंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 11 में भी पढ़ाया था. ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने 11 में भी पढ़ाया था. ढूंढो किस बस्ती वाले को दिए. ठीक है, ढूंढ के लाओ 11 के नोट्स and find it out what is lengthenide contraction, right? If directly you may not find, but indirectly try to find out what is lengthenide contraction. YouTube नहीं करना है, इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तुम आंसर फाइंड कर लोगे. उसमें तुम्हें अननेसेसरी इतने उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि तुम 1 घंटा उसमें बर्बाद कर दोगे. So rather try to find out the reason by yourself or try to understand the theory given in the textbook, or you may use some reference book, right? But please avoid watching any YouTube videos and try to find the reason, right? Explanation may not be as per our expectation. So lengthenide contraction को आपको find करना है कल से पहले. Start होते ही मैं आप में से कुछ लोगों को opportunity दूंगा to answer what is lengthenide contraction in your own simple way rather than actual scientific explanation, right? Yes, Manali, what happened? So tomorrow I have a class in physics. Speak louder. Sir, tomorrow I have a class in physics from 12:30 to 1:30. So is Okay, it so you possible? join at 1:30 और आधे घंटे का recording है. Okay, चलो. Have a nice day. Thank you.